Hello friends, welcome to Our Tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 30th of April 2021 related current affairs. But before starting this, let us we talk about some important news headlines related to the 30th of April 2021. So the first important news headline of today's is Jhumpa Lahiri comes out with the new novel Whereabouts. Renowned American author Jhumpa Lahiri has relaunched her new novel titled Whereabouts. The book is an English translation of the Italian novel La Giove Mi Trovo, which was written by the author Jhumpa Lahiri herself, but it was published in 2018. हमें पता होना चाहिए कि झुम्पा लाहिड़ी ने लॉन्च की है Whereabouts टाइटल का अपना नया उपन्यास. प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने Whereabouts शीर्षक अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है. यह पुस्तक इतालवी उपन्यास लास डोवो माई ट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा था और 2018 में प्रकाशित किया था. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. Whereabouts is a new novel of झुम्पा लाहिड़ी. Next important news headline of today's is Arun Raste named a new MD, Managing Director and CEO, Chief Executive Officer of NCDEX. Market Regulator Securities and Exchange Board of India SEBI, I repeat, Securities and Exchange Board of India SEBI has given an approval to the appointment of the Arun Raste as MD and CEO of NCDEX, full form is National Commodity and Derivatives Exchange Limited, for a period of 5 years. हमें पता होना चाहिए कि अरुण रस्ते होंगे NCDEX के नए MD और CEO. बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI और सेबी ने अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX के MD और CEO के रूप में नियुक्त की मंजूरी दे दी है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है अरुण रास्ते जी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज अबाउट DRDO. सो Defense Research and Development Organization DRDO develops single crystal blades for helicopter engines. The Defense Research and Development Organization DRDO has developed single crystal blades technology for helicopters and has supplied 60 of these blades to Hindustan Aeronautics Limited HAL as part of their indigenous helicopter development program for engine application. The DRDO will develop a total of 5 sets, that is 300 blades of a single crystal blade. हमें पता होना चाहिए कि DRDO ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए विकसित किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है और जिसके लिए DRDO ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को इंजन अनुप्रयोग के लिए उनके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की है. DRDO सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के कुल 5 सेट जो कि 300 ब्लेड जो है ये विकसित करेगा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज उत्तर प्रदेश वॉन द ई पंचायत अवार्ड. द यूपी गवर्नमेंट वॉन ई पंचायत पुरस्कार 2021 रैंकिंग फर्स्ट इन कैटेगरी 1. It was followed by Assam and Chhattisgarh at the second position, while Odisha and Tamil Nadu stayed on third position. Every year, the Union Ministry of Panchayati Raj awards those states which ensure maximum use of information technology IT to keep a tab on the work done by Gram Panchayats. उत्तर प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021. उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है. इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा दिए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का
अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2020. India has retained its position as the third biggest military spender in the world in 2020, according to the new data titled SIPRI Military Expenditure Database published by the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, और SIPRI का फुल फॉर्म है Stockholm International Peace Research Institute, on April 26, 2021. भारत साल 2020 में भी बन रहा है तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए गए सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस सैन्य खर्च डेटाबेस शीर्ष के लिए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज इंडिया रैंक्स 49th इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021. India has been placed at 49th position among 104 nations in the Chandler Good Government Index or CGGI. Finland has topped the CGGI Index 2021 and Venezuela is the last ranked country at 401. Index हमें पता होना चाहिए। Rank 1 is Finland, Rank 2 is Switzerland, Rank 3 goes to Singapore, Rank 4 goes to Netherlands and Rank 5 for the Denmark. So हमें पता होना चाहिए कि चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में 104 देशों में से भारत जो है 49वें स्थान पर रहा है। फिनलैंड ने CGGI सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वेनेजुएला 104 स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। रैंक 1 फिनलैंड, रैंक 2 स्विट्जरलैंड, रैंक 3 सिंगापुर, रैंक 4 नीदरलैंड and rank 5th goes to Denmark and India on 49th rank. Next important news headline of today's is about China. China launches robot prototype Neo-01 clear space debris. The Chinese government has launched a robot prototype named as Neo-01 in the Earth's low orbit. On its Long March 6 rocket, the 30 kg robot prototype has been developed by Shenzhen-based space mining startup Origin Space. हमें पता होना चाहिए कि चीन ने रोबोट प्रोटोटाइप Neo-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है। चीन सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में Neo-01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। 30 किलो के रोबोट प्रोटोटाइप को शेंजन स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। Neo-01 इस प्रोटोटाइप का नाम है। Next important news headline of today's is Kriti Krant became first Indian woman to get Wild Innovator Award. Dr. Kriti K. Karnath, Chief Conservation Scientist at Bangalore-based Center for Wildlife Studies (CWS), has been chosen as the first Indian and Asian woman for the 2021 Wild Innovator Award. This award, given by the World Elements Foundation, brings together a condition of innovators, advocates, and partners to disrupt the status quo and identify solutions to global sustainability and conservation. हमें पता होना चाहिए कि कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड्स पाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है। बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS की प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशिया की पहली महिला के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, जो नव प्रवर्तकों, अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थित बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ लाता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज about the Indian Army. Indian Army signs MOU with HPCL and NIEDO for Ladakh Ignited Minds project. Ladakhi Youth Army under the aegis of Fire and Fury Corps signed MOU for Ladakh Ignite Minds project with corporate partner Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL and executive agency National Integrity and Educational Development Organization
NIEDO HQ-14 कॉप्स ले। हमें पता होना चाहिए कि भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए HPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NIEDO के साथ किया है समझौता। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के तत्वाधान में लद्दाखी युवा सेना कॉर्पोरेट पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय 14 कॉर्प्स ले के साथ लद्दाख इग्निटी माइंड्स परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज द लास्ट वन। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बिकम ASICS ब्रांड एम्बेसडर। हमें पता होना चाहिए कि जापान स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ASICS है। इन्होंने अनाउंस किया है दैट इट वाज अपॉइंटेड रविंद्र जडेजा द ऑलराउंडर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एंड चेन्नई सुपर किंग्स CSK एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। द कंपनी विल फोकसेस ऑन स्पोर्टिंग गियर फॉर द रनिंग कैटेगरी। हमें पता होना चाहिए कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जी को ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जापानी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड ASICS ने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया है। ASICS जो जापान की कंपनी है, ये खासकर स्पोर्टिंग गियर जो रनिंग कैटेगरी की होती है इस पर ज़्यादा अपना काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। So guys, now let us we talk about 30th of April 2021 related current affairs. So today's first question is विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 4000 संक्रेदक प्रदान करने की घोषणा की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO announces the granting of 4000 concentrators to which country? So answer is India. Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज किस राज्य में स्थित वेदांता की ऑक्सीजन प्लांट को खोलने की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट वेदांताज ऑक्सीजन प्लांट वाज अनाउंस्ड टू रीओपन? सो आंसर इज तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट तमिलनाडु इज चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कार्मिक विभाग में कितने खिलाड़ियों को लिपिक ग्रेड द्वितीय के तहत सीधी नियुक्ति दी गई है? हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट अंडर क्लरिकल ग्रेड 2? सो आंसर इज 16 प्लेयर्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज धर्मगुरु गाजी फकीर का निधन हुआ है। उनका संबंध किस शहर से था? धर्मगुरु गाजी फकीर हैज डाइड। विच सिटी वाज ही रिलेटेड टू? सो ही वाज रिलेटेड टू जैसलमेर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। राजस्थान के जैसलमेर से संबंधित थे धर्मगुरु गाजी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज किस राज्य में स्थित राजसमंद ऑक्सीजन संयंत्र को फिर से शुरू किया गया है? राजसमंद ऑक्सीजन प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट वाज रिज्यूम्ड? सो आंसर इज राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट राजस्थान इज जयपुर, द पिंक सिटी। और वेदांता ऑक्सीजन प्लांट जो था ये तमिलनाडु राज्य का था और राजसमंद ऑक्सीजन प्लांट जो था ये राजस्थान का था। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज लॉन्च्ड पुस्तक हो इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक हो इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स? सो आंसर इज प्रदीप गुप्ता जी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर? सो आंसर इज लैरी केलनर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। लैरी केलनर अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज किस देश ने बौद्ध मंदिरों में 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? विच country set a Guinness World Record by burning 3,30,000 candles in a Buddhist temple? So answer is Thailand. Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ASICS का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? Was appointed as the new brand ambassador of ASICS. So answer is रविंद्र जडेजा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, रविंद्र जडेजा the former cricket player of CSK team appointed as the new brand ambassador of ASICS Japan company. Next question number 10 is किस IIT संस्थान ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है?
Which IIT institute or Indian Institute of Technology built India's first 3D printer house? So answer is IIT Madras. Very important question. हमें याद रखना है कि IIT मद्रास ने जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बने हैं? Who became the first woman commanding officer of Border Roads Organization और BRO? So आंसर इज वैशाली हिवासाई. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. वैशाली हिवासे बिकम द फर्स्ट वुमन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और ब्रो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज कार्मिक मंत्रालय ने वित्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया है? Who was appointed by the Ministry of Personnel to the post of Finance Secretary? So आंसर इज TV सोमनाथन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. TV सोमनाथन जी को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है कार्मिक मंत्रालय में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? When was International Dance Day was celebrated? So आंसर इज 29th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डांस डे 2021? सो आंसर इज पर्पस ऑफ डांस और नृत्य का उद्देश्य जो था ये विषय रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज वामन भोसले जी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वामन भोसले हैज डाइड एट द एज ऑफ 89. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस न्यूज़पेपर एडिटर. वह एक एडिटर थे. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है वामन भोसले जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज मनोज दास का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सो मनोज दास हैज डाइड एट द एज ऑफ 87. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस राइटर. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है मनोज दास जी जो थे ये एक प्रसिद्ध लेखक थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज किस राज्य ने ऑक्सीजन की खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ समझौता किया है? विच स्टेट टाइड अप विथ भूटान एंड नागालैंड फॉर परचेस ऑफ ऑक्सीजन? सो आंसर इज असम. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. असम राज्य ने भूटान और नागालैंड के साथ में ऑक्सीजन के लिए खरीद के लिए जो है समझौता किया है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट असम इज दिसपुर. कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्फू एंड कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज किस राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट मेवालाल चौधरी डाइड एट द एज ऑफ 68? सो आंसर इज बिहार. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट बिहार इज पटना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डिब्रिस लॉन्च की है? Which country launched robot prototype Neo 01 Clear Space Debris? So answer is country China. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है Neo 01 जो है ये एक रोबोट प्रोटोटाइप है, लॉन्च किया है चाइना ने. एंड कैपिटल ऑफ कंट्री चाइना इज बीजिंग एंड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री चाइना इज जी जिनपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज IHS मार्केट ने FY22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? What percentage of GDP of India has been estimated by the IHS market FY21? So answer is 9.6%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. 9.6% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज ADB ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ADB एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP टू बी इन द ईयर 2021 to 22? सो आंसर इज 11%. 11% रहने का अनुमान लगाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज किस क्रिकेटर ने PM केयर फंड में $50,000 दान किए हैं? विच क्रिकेटर डोनेटेड $50,000 to the PM केयर फंड? सो आंसर इज पैट कमिंस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. पैट कमिंस इज द क्रिकेटर डोनेटेड $50,000 to the PM केयर फंड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज किस देश ने स्पुतनिक V दवाई को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? विच कंट्री अप्रूव्ड स्पुतनिक V मेडिसिन फॉर द इमरजेंसी यूज? सो आंसर इज बांग्लादेश. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. बांग्लादेश की राजधानी ढाका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेलीजॉय
का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी एक्वायर्ड डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय? सो आंसर इज लेंसकार्ट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। डेली जॉय इज रिलेटेड टू द लेंसकार्ट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवरेज पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री बैंड फेस कवरेज इन पब्लिक प्लेसेस? सो आंसर इज श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। श्रीलंका देश ने सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवरेज पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज IPL और इंडियन प्रो लीग में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहले बल्लेबाज कौन बना है? हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 50s इन IPL? सो आंसर इज डेविड वार्नर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज PM केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद पर मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वर अप्रूव्ड बाय परचेज अंडर PM केयर फंड? सो आंसर इज 1 लाख। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जो है मंजूरी दी गई है अंडर PM केयर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज DRDO ने LCA तेजस विमान पर किस एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया है? DRDO equipped which air to air missile on LCA तेजस एयरक्राफ्ट? सो आंसर इज पाइथन 5। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। पाइथन 5 इज equipped with air to air missile on TCA तेजस। And full form of DRDO is again Defense Research and Development Organization. Next question, question number 29 is भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइट माइंस कार्यक्रम के तहत किसके साथ समझौता किया है? इंडियन आर्मी टाइड अप विथ विच लद्दाख यूनाइटेड माइंड प्रोग्राम? सो आंसर इज HPCL एंड नाइडो। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। HPCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और नाइडो का फुल फॉर्म नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? वो बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन और एशियन वुमन टू रिसीव द वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड। सो आंसर इज डॉक्टर कृति के करंत, बेंगलोर से है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने पढ़ा है। सो गाइज, आई होप आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं। सो आप इन्हें प्लीज़ लिखिए, याद करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।